Assalamu alaikum viewers, I hope you are fine. It is me, Mr. Saeed Wazir, mentor of CSS English Essay and Pressy. Viewers, currently I am teaching at Civil Officers Academy. What is the purpose of today's lecture? Viewers, the purpose of today's lecture is how to sketch your outline, how to gather material, and how to do your rough work on essay of CSS and PMS. Lekin students, simultaneously, I have worked on different materials and I have worked on its thesis statement. So step by step, I'm going to explain. The first important thing is I have to talk about what a thesis statement is. Because majority of the students in the previous videos, they asked questions about thesis statement, its placement, its length, and its efficacy. So if you focus the thesis statement, political parties are the bedrock of democracy and good governance. Viewers, यहाँ तक ये आपकी पोजीशन, स्टांस या स्टेटमेंट है, लेकिन thesis statement में हमने पढ़ा था कि it's not only a sweeping generalization, rather it is supported by evidences. तो स्टूडेंट्स अभी आई विल मेक क्लेम्स और एविडेंसेस. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख लें, बिकॉज दे प्रोवाइड द मैसेज विद रिप्रेजेंटेशन, क्लेम नंबर 1 और एविडेंस नंबर 1, सोशलाइज एंड एजुकेट वोटर्स एंड सिटीजन्स, क्लेम नंबर 2, एंड मेक स्टेट मशीनरी अकाउंटेबल, क्लेम नंबर 3. स्टूडेंट्स, realistically, a thesis statement is a combination of stance or position or statement and claims. Without making your claim, a thesis statement is nothing. Rather, it is a sweeping generalization. तो viewers, I will try my level best कि हम इस टॉपिक को भी कवर करें और आप आउटलाइन बनाने का तरीका भी अंडरस्टैंड करें. If you focus this, Roman number 1, introduction. Most of the time, students, traditionally, you have to write in Roman number 1 that heading introduction. But sometimes you can also write the essence, political parties in democracy. But this should be very clear, very brief, very concise. Students, Roman number 2 में आप लोग देख ले, major salient functions of political parties. तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के मैंने मेजर फंक्शंस उठाए. ए, soliciting and articulating public policy priorities. B, socializing and educating voters and citizens. C, recruiting and training candidates. D, making state machinery accountable. E, mobilizing and organizing opposition या the public. F, integrating and empowering the marginalized. Marginalized में आपके minorities, women, third gender and other persecuted segments of society. Students, all these headings, they come under Roman number 2. Now we are going towards Roman number 3. Constitutional rights of political parties. Freedom of organization, freedom of speech and assembly, transparent political finances, media access and fair reporting, inclusion in the electoral processes, fair competition, freedom from discrimination, freedom to stand for election, struggle for plurality. मतलब they will include all and sundry in a given society. Now viewers, I'm going towards Roman number 4. Structure, types and forms of political parties in Pakistan. Because the title is Political Parties in Pakistan, the essay is all about Pakistan. So I have to narrow down the given topic. Students, यहाँ पे देख ले, structure, types. ये अगर आप types को थोड़ा ऊपर फोकस करें, वन पार्टी सिस्टम, मेजॉरिटी जो आपके किंगडम्स है, आपके जो डिक्टेटर्स है, आपके जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स है, उधर वन पार्टी सिस्टम. सेकंड, टू पार्टी सिस्टम यूएस में, द डेमोक्रेटिक एंड द रिपब्लिकन पार्टीज. और थर्ड, मल्टी पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टीज सिस्टम लाइक पाकिस्तान, इंडिया एंड
you can say the South Asian countries. स्टूडेंट्स ये तो आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप डिटेल के साथ पढ़ ले कि वेदर दिस सिस्टम इज गुड और बैड, मल्टी पार्टी सिस्टम, ये आप लोग खुद पढ़ ले क्रिटिकली। पर मैंने सिर्फ इस चीज को पॉइंट आउट किया। अभी स्टूडेंट्स हम आएंगे रोमन नंबर 5, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान। नंबर 1, लैक ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस मींस इंटरनल डेमोक्रेसी, ये एक चैलेंज है। बी, वाइड स्प्रेड कल्चर ऑफ करप्शन, यहाँ पे वाइड स्प्रेड ऑफ करप्शन नहीं आना चाहिए, वाइड स्प्रेड कल्चर ऑफ करप्शन। बहरहाल दिस इज यू कैन से एन इनसिग्निफिकेंट एरर। थर्ड, अगर सी में आप देख ले, लैक ऑफ मीनिंगफुल पॉलिटिकल विजन एंड मैनिफेस्टोज। डी में अगर आप देख ले, एब्सेंस और डिनाइल ऑफ पार्टिसिपेशन एट द ग्रास रूट्स लेवल। ई, ineffective role by opposition parties. F, judicial activism. J, role of the military. So students, these are the challenges, the major challenges to the political parties in Pakistan. Abhi students, when you identify challenges, you have to talk about its wide-ranging ramifications or far-reaching repercussions or ill effects. तो स्टूडेंट्स, इस आप एक पैराग्राफ में इस पे बात करें, 2 में करें, 3 में करें, 1 में करें, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गिवन टॉपिक। आप आउटलाइन को देखेंगे, इसके हिसाब से फिर आप बॉडी को डेवलप करेंगे। अभी स्टूडेंट्स, आई विल कम टूवर्ड्स रोमन नंबर 7, दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स रिमेडियल मेजर्स। इसमें स्टूडेंट्स अगर आप देख लें, मैंने ब्रॉडली कैटेगराइज किया, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। कैपिटल ए, एट द लेवल ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट को क्या करना चाहिए, इन अ बिड टू मेक पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शनल, डायनेमिक एंड पीपल फ्रेंडली। तो पब्लिक फंडिंग, स्टेट को चाहिए कि पब्लिक फंडिंग करे, पार्टीज को फाइनेंस करे, पार्टीज को फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेट करें। सेकंड, कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग मीन्स पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। थर्ड, स्पेस फॉर अपोजिशन, अपोजिशन को स्पेस दे दे। तो स्टूडेंट्स, ये 3 सब हेडिंग्स आ गए आपके कैपिटल लेटर ए के अंडर। बी, एट द लेवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। नंबर 1, इंटरनल डेमोक्रेसी, जिसको हम इंटर पार्टी इलेक्शंस भी कहते हैं। लोकल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज है, दे आर हेडक्वार्टर्ड इन द फेडरल एंड प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स। लीडर्स को चाहिए कि ये डिवॉल्व करे, ये ट्रांसफर करे, लोकल फ्रेंचाइजीज बना दे, हेडक्वार्टर्स बना दे, ऑर्गेनाइजेशंस बना दे। थर्ड में देख ले, कोड ऑफ एथिक्स, ये कोड ऑफ एथिक्स भी डिजाइन करे और इसको इंप्लीमेंट भी करे इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। फिर सी में अगर आप देख ले, एट द लेवल ऑफ सिविल सोसाइटी। व्हाट इज सिविल सोसाइटी? स्टूडेंट्स, अगर आप ब्रॉडली सिविल सोसाइटी को डिफाइन करें तो दिस इज लीगल फ्रेटर्निटी, मीडिया, प्राइवेट मीडिया आउटलेट्स एंड डोनर एजेंसीज। लेकिन बाकी भी आपके ट्रेड यूनियंस, टीचर यूनियंस, कम्युनिटी लीडर्स, मतलब दे आर नॉट वर्किंग फॉर प्रॉफिट, दे आर वर्किंग फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल इन जनरल। तो स्टूडेंट्स, फिर देख ले सी में, एट द लेवल ऑफ सिविल सोसाइटी में रिफॉर्म्स एंड ट्रांसपेरेंसी, सीकिंग रोल फॉर अपोजिशन पार्टीज। और रोमन नंबर 8 में आप देख ले, कंक्लूजन। नाउ स्टूडेंट्स, द इंपॉर्टेंट थिंग इज पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। अगर मैं थीसिस स्टेटमेंट की तरफ आ जाऊं, बस ठीक है, मैं यहां से इसको कर सकता हूं। पॉलिटिकल पार्टीज आर द बेड रॉक ऑफ डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस। स्टूडेंट्स, यहां पे ये मैंने स्टांस लिया था, ये मेरा स्टांस था, या पोजीशन या स्टेटमेंट। लेकिन आगे मैं अभी क्लेम्स भी करूंगा। मैंने 3 क्लेम्स किए इसमें। नंबर 1, प्रोवाइड द मैसेज विद रिप्रेजेंटेशन, सोशलाइज एंड एजुकेट वोटर्स एंड सिटीजन्स एंड मेक स्टेट मशीनरी अकाउंटेबल। ये 3 मेरे क्लेम्स हैं। अभी सारे स्टूडेंट्स, जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, दे क्वेश्चन में कि सर ये जो क्लेम्स है हमारे, इनको हम इंट्रोडक्शन में डेवलप करें, सपोर्ट करें, एक्सप्लेन करें या बॉडी में। स्टूडेंट्स, यू आर सपोज टू एक्सप्लेन देम इन द बॉडी, नॉट इन द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज a small reflection of your outline या of your whole essay,
मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब ये है कि इट इंक्लूड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ योर आउटलाइन. अभी these are very important and interesting points. लेकिन स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज अगर हम पाकिस्तान के लेवल पे बात करें, पाकिस्तान के लेवल पे, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिबरल, बिटवीन कंजर्वेटिव, बिटवीन राइट, बिटवीन लेफ्ट, और कैटेगराइजेशन भी नहीं कर सकते. तो आज मैंने ये जो हैंडआउट्स तैयार किए मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान, अगर आप यहाँ पे देख लें, लेफ्ट, सेंटर, सेंटर राइट, राइट. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आपका बिल्कुल ये आपकी मिडिल पोजीशन है, ये आपकी मिडिल पोजीशन है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो मैं यहां से शुरू करूंगा. लेफ्ट आपकी अवामी वर्कर्स पार्टी, दैट इज यू कैन से मोस्टली फंक्शनल इन पंजाब. तो स्टूडेंट्स, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इन द वेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1790s में इगैलिटेरियनिज्म एंड स्टेट कंट्रोल, इसकी जो मैनिफेस्टो है, इसकी जो पर्पस है, इगैलिटेरियनिज्म मतलब इक्विटेबिलिटी, एंड या इक्वालिटी एंड स्टेट कंट्रोल मतलब मेजर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिसीजंस दे विल बी टेकन बाय स्टेट. तो ये स्टूडेंट्स, इसकी जो स्टैंडर्ड आइडियोलॉजी है वो सोशलिज्म है, और जो रेडिकल आइडियोलॉजी है वो कम्युनिज्म है. कम्युनिज्म इन लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम है, और सोशलिज्म इन लोगों का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, लेकिन रिफाइंड सिस्टम. और ये स्टूडेंट्स वर्किंग क्लास के लिए स्ट्रगल करते हैं. ठीक है, ये लोग हम यहाँ पे देख ले, नो सोशल हायरार्की बट इक्वलिटी. दे ट्राई टू शेटर the webs of social hierarchy because this is based on differences between the rich and the poor. फिर स्टूडेंट्स आपके सेंटर लेफ्ट, इसमें आपके एएनपी, पीपीपी और पी के मैप, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी. स्टूडेंट्स, इनके फीचर्स आप देख लें. वर्किंग विद इन द एस्टेब्लिश्ड सिस्टम, सोशल जस्टिस के लिए स्टूडेंट्स ये एग्जिस्टिंग सिस्टम में काम करते हैं. अपोज वाइड गैप रिवोल्यूशन या चेंजेस, सपोर्ट्स मॉडरेट मेजर्स, कंप्लीट इक्वालिटी नॉट पॉसिबल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन. स्टूडेंट्स, ये जो आपके सेंटर लेफ्ट पार्टीज हैं, दे बिलीव या दे एस्पाउज that it is impossible to bring about complete equality, लेकिन at the level of state and at the level of society they will try their level best के equal opportunities create करें. equal opportunities का मतलब ये है कि सोसाइटी को हम gradually and slowly empower करें economically and politically. फिर है स्टूडेंट्स आपकी सेंटर में MQM, political philosophy of taking moderate position, balance between social equality and social hierarchy, no sudden political changes that will lead to either left or right. Students, ये लेफ्ट और राइट को अवॉइड करने के लिए एक मॉडरेट पोजीशन ये लोग अडॉप्ट करते हैं. ठीक है, ये एब्रप्ट चेंजेस पे बिलीव नहीं करते हैं, और ये दोनों चीजों को कंसीडर करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं. ठीक है, सोशल इक्वालिटी को और सोशल हायरार्की को. फिर है स्टूडेंट्स आपकी सेंटर राइट, इसमें पीटीआई एंड पीएमएलएन, आप पीएमएलक्यू भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आप देख लें, ये दे स्पाउस कैपिटलिज्म, द बुर्जुआजी, द एलीट एंड द प्रोलेटेरिएट, द वर्किंग क्लास. यहाँ पे स्टूडेंट्स इनके जो फीचर्स है, बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, वेस्टेड इंटरेस्ट. आप इनके वर्कर्स देख ले, आप इनके लीडर्स देख ले, दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट्स, दे आर लैंड माफियाज, दे रन अ लॉट ऑफ बिजनेस वेंचर्स. फिर स्टूडेंट्स आपकी राइट में ये भी कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं. यहाँ पे JUIF, JI, रिलीजियस पार्टीज, कंजर्वेटिव और रिएक्शनरी. किन चीजों पे बिलीव करते हैं? अथॉरिटी पे, ट्रेडिशन पे और प्रॉपर्टी पे. और ये भी supported या it got its support in 1790s. अभी स्टूडेंट्स, what is conservative and reactionary? They have very limited
they have very limited, you can say, thinking regarding women rights, minority rights, and they espouse belligerent and aggressive foreign policy. So students, today's lecture was all about how to collect, how to gather, how to sketch outline, and how to develop your essay. Students, two principles again I will remind you. Making stories out of nothing, making stories out of nothing, and making things precise and comprehensive. Students, outline में you try your level best के आप चीजों को मिनिमाइज करें, इन मिनिएचर आप चीजों को प्रेजेंट करें, बट बॉडी में, इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में यू मेक स्टोरीज आउट ऑफ नथिंग. तो स्टूडेंट्स, काइंडली जब भी आप कोई टॉपिक तैयार करेंगे, वेन एवर यू गो फॉर एनी टॉपिक, तो आप चीपली अवेलेबल मटेरियल को फॉलो ना करें. रिगर्जिटेशन या मेमोराइजेशन या यू कैन से मैकेनिकल रूट लर्निंग, आप थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देख ले. अभी आप ये करें कि पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में आप इंडिया के साथ कंपेयर करें, बांग्लादेश के साथ कंपेयर करें, यूएस के साथ करें, यूके के साथ करें, और पॉलिटिकल पार्टीज की आप कंट्रीब्यूशंस देख ले डेमोक्रेसी में, गुड गवर्नेंस में, इसके अलावा बाकी इश्यूज में. तो स्टूडेंट्स, यू विल बी डिफरेंट. अगर आप एफपीएससी के रिपोर्ट्स पढ़ लें, देयर इज अ क्रिस्टल क्लियर इंस्ट्रक्शन कि lack of comprehensive and research based knowledge. तो स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ द डायलेमास. आप लोग डिफरेंट करें, डिफरेंट सोर्सेज स्टडी करें, खुद आउटलाइन बना दे, इंट्रोडक्शंस लिख ले, बॉडी पैराग्राफ्स डेवलप करे, किसी से चेक करवाए, किसी से भी चेक करवाए. इट डजंट मीन कि मतलब आप किसी बड़े स्पेशल एक्सपर्ट के पीछे चले जाए और इसको मतलब आप अवेल करें. एनी टीचर who is well versed in academic principles and values. So hopefully students, the lecture will be beneficial. Again, if you have any queries, any difficulties, any comments, so below in the comment section you can give me your feedback, और kindly आप लोग शेयर कीजिए और एक critical, एक holistic और एक independent feedback दे दें. ठीक है, beyond any you can say consideration, you people can give me your feedback. So till next video, stay safe. Hopefully inshallah next time I will come up with something new. Allah Hafiz.